کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ جو دفن کیا جاتا ہے وہ پھر زندہ ہو سکتا ہے؟ یہ کہانی تمہیں حیرت میں ڈال دے گی۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک پرانے قبرستان سے جہاں رات ہوتے ہی ایک عجیب سا خوف چھا جاتا ہے۔ یہ بستی کسی بھی عام بستی جیسی ہی ہے، مگر ایک راز اس جگہ کو سب سے الگ بنا دیتا ہے۔ 10 سال پہلے ایک شخص یہاں سے غائب ہو گیا تھا، اور اب لوگ کہتے ہیں کہ اس کی قبر سے آوازیں آتی ہیں۔ رات کا وقت تھا، تیز ہوا چل رہی تھی۔ قبرستان کے قریب سے گزرنے والے مزدور نے اچانک ایک بھیانک چیخ سنی۔ وہ خوف سے کانپ اٹھا، اس کے قدم جم گئے، اور جیسے ہی اس نے قبر کی طرف دیکھا تو زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی، بچاؤ! یہ کیا ہو رہا ہے؟ قبر سے آواز آئی۔ محلے کے لوگ آواز سن کر گھبرا گئے اور دوڑتے ہوئے آئے۔ ایک بزرگ بابا کریم، جو ہمیشہ ہوشیار اور سمجھدار مانے جاتے تھے، آگے بڑھے اور مزدور سے پوچھا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ قبر سے کوئی آواز نہیں آتی۔ مزدور کی آنکھوں میں شدید خوف تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا۔ قبر ہل رہی تھی، کوئی اندر سے آواز دے رہا تھا۔ یہ سنتے ہی وہاں موجود سب لوگ حیران رہ گئے۔ کوئی سرگوشی کر رہا تھا، کوئی خوف میں مبتلا تھا۔ اچانک ایک نوجوان جمیل بولا، یہ تو وہی قبر ہے جس میں 10 سال پہلے ایک گمشدہ لڑکے کو دفن کیا گیا تھا۔ رحیم! یہ سنتے ہی ہر شخص کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ قبرستان میں خاموشی چھا گئی۔ رحیم وہی بچہ تھا جو ایک دن اچانک غائب ہو گیا تھا۔ محلے میں کئی کہانیاں مشہور تھیں۔ کوئی کہتا تھا کہ وہ کسی پر اسرار طاقت کا شکار ہو گیا، کوئی کہتا تھا کہ اسے کسی نے اغوا کر لیا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ حقیقت کیا تھی۔ چاند کی مدھم روشنی میں قبر کے اوپر کچھ لکھا نظر آیا۔ ایک عورت نے خوف سے چیختے ہوئے کہا، وہ دیکھو! قبر کی مٹی پر نام لکھا ہوا ہے۔ سب نے غور سے دیکھا، زمین پر صرف ایک ہی نام لکھا تھا، رحیم۔ یہ منظر دیکھ کر ہر کسی کی سانسیں رک گئیں۔ قبر کے قریب ایک تعویذ پڑا تھا جو ہوا کے جھونکے سے آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ بابا کریم نے جھک کر تعویذ اٹھایا، اس پر کچھ پراسرار نشانات بنے ہوئے تھے۔ وہ سرگوشی میں بولے، یہ تعویذ کسی جادوگر کا لگتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں بے شمار سوالات جنم لینے لگے۔ ایک لڑکا حماد، جو ہمیشہ بہادری کی باتیں کرتا تھا، آخرکار بولا، اگر اس قبر میں کچھ ہے تو ہمیں سچ معلوم کرنا ہوگا۔ یہ سن کر بابا کریم نے گہرا سانس لیا، یہ قبر ہمیں کچھ بتانا چاہتی ہے، کیا ہمیں اسے کھولنا چاہیے؟ کچھ لوگوں نے انکار کیا تو کچھ نے حامی بھری۔ اچانک ایک عورت زور سے چلائی، نہیں، یہ کسی روح کا انتقام ہو سکتا ہے، اسے مت چھیڑو۔ لیکن حماد نے قدم آگے بڑھایا، ہمیں سچ جاننا ہوگا، ورنہ یہ راز ہمیشہ راز ہی رہے گا۔ بابا کریم نے آخرکار فیصلہ کر لیا۔ وہ آگے بڑھے اور قبر کھودنے کے لیے بیلچہ اٹھایا۔ جیسے جیسے وہ مٹی ہٹانے لگے، لوگوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی گئیں۔ ہر چہرے پر خوف کے سائے تھے۔ کچھ ہی لمحوں بعد قبر کا ڈھکن نظر آنے لگا۔ بابا کریم نے ایک آخری گہرا سانس لیا اور تابوت کا ڈھکن ہٹایا۔ اندر جھانک کر جو انہوں نے دیکھا، وہ دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ ان کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تمام لوگ حیرانی اور خوف سے آگے بڑھے۔ کیا یہ واقعی کسی روح کا انتقام تھا؟ کوئی ایسا راز جو 10 سال بعد دفن ہونے کے باوجود اب سامنے آنے والا تھا؟ یہ سچ اب سب پر ظاہر ہونے والا تھا، مگر کیا لوگ اس کے لیے تیار تھے؟ جیسے ہی قبر کھودی گئی، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ لوگ دم سادھے کھڑے تھے۔ بابا کریم کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سب کی نظریں تابوت پر جمی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی روشنی اندر پڑی تو لوگ خوف سے پیچھے ہٹنے لگے۔ تابوت میں ایک انسانی ڈھانچہ تھا، مگر سب سے زیادہ خوفناک چیز یہ تھی کہ اس کے ہاتھوں میں ایک لکڑی کی تختی دبی ہوئی تھی، جس پر خون جیسے سرخ رنگ میں کچھ لکھا تھا۔ حماد نے ہمت کر کے تختی اٹھائی۔ جیسے ہی اس نے لکھائی پڑھی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ مجھے دفن کرنے والا ابھی تک آزاد گھوم رہا ہے، میرا بدلہ لو ورنہ میں واپس آؤں گا۔ یہ الفاظ پڑھ کر سب لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ کچھ عورتیں چیخنے لگیں، کچھ لوگ پیچھے ہٹنے لگے۔ حماد نے خوفزدہ نظروں سے بابا کریم کی طرف دیکھا۔
ये क्या हो सकता है? हमाद की आवाज कांप रही थी। बाबा करीम ने गहरी सांस ली। ये सच है कि 10 साल पहले रहीम गायब हो गया था, मगर किसी ने नहीं सोचा था कि वो कत्ल हो चुका है और कातिल शायद हमारे दरमियान ही मौजूद है। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। खौफ, शक और परेशानी उनके चेहरों पर वाज़ेह थी। अचानक एक मर्द जो कब्र के पीछे खड़ा था तेजी से भागने लगा। ये देखकर हमाद और 2 दूसरे नौजवान इसके पीछे लग गए। रोको इसे, हमाद चलाया। मर्द गलियों में दौड़ने लगा, इसकी सांसें फूल रही थीं। वो एक सुनसान हवेली में दाखिल हो गया, लेकिन हमाद और उसके साथी भी इसके पीछे पहुंच गए। हवेली पुराने वक्तों की लग रही थी, जगह जगह दरारें पड़ी हुई थीं। दरवाजा खुला था, जैसे कोई काफी दिनों से यहां आता हो। हमाद ने हल्की रोशनी में देखा कि वो शख्स ऊपर की मंजिल पर भाग गया था। सब ने आहिस्ता कदमों से सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। हर कदम के साथ लकड़ी चरचरा रही थी। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो शख्स एक पुराने बक्स के करीब खड़ा था। इसके हाथ कांप रहे थे। रुक जाओ, हमाद ने सख्त लहजे में कहा, मगर वो शख्स बदहवासी में बक्स खोलने लगा, जैसे वहां कुछ छुपा हो। हमाद ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या है? तुम क्यों भाग रहे थे? मर्द की आंखों में खौफ था। इसके होंठ कपकपा रहे थे। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। बाबा करीम भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने गहरी नजर से इस शख्स को देखा। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो डर क्यों रहे हो? ये बक्स खोलो। मर्द ने कांपते हाथों से बक्स खोला। अंदर एक पुराना लिबास पड़ा था और उसके नीचे एक खंजर था जिस पर खुश्क खून के धब्बे लगे हुए थे। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। हमाद ने गुस्से से पूछा, ये किसका खून है? मर्द की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने सर झुका लिया। ये रहीम का खून है। मैंने इसे मारा नहीं था। बस मैंने छुपाने की कोशिश की थी। छुपाने की कोशिश? बाबा करीम ने हैरानी से कहा। हाँ, असल कातिल में नहीं हूं, मगर मैं जानता हूं वो कौन है। मैंने इसका राज छुपाया क्योंकि मुझे धमकियां दी गई थी। अगर मैं कुछ बोलता तो मुझे भी मार दिया जाता। ये सुनकर सब लोग सनसनी में आ गए। कातिल अभी तक आजाद था और शायद वो इनमें से ही कोई था। बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी, जैसे किसी नादीदा ताकत ने इस लम्हे को मजीद खौफनाक बना दिया हो। बाबा करीम ने गहरी नजर हमाद पर डाली। सच सामने आकर रहेगा और अब हमें कातिल का नाम मालूम करना है, इससे पहले कि वो फिर कोई और गुनाह कर बैठे। अंधेरे में छुपा हुआ ये राज अब रोशनी में आने वाला था। मगर क्या ये इतना आसान था? इस कहानी का एक और भयानक पहलू बाकी था। रात की तारीकी में हवेली के अंदर खामोशी थी, मगर बाहर हवा तेज चल रही थी, जैसे कोई भटकी हुई रूह आवारा घूम रही हो। हमाद, बाबा करीम और बाकी लोग अब कातिल की सच्चाई के करीब पहुंच चुके थे। वो जान चुके थे कि वो शख्स कातिल नहीं था, बल्कि किसी और ने रहीम का कत्ल किया था और सारा इल्जाम इस बेगुनाह शख्स पर डाल दिया था। हमाद ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमें असल मुजरिम तक पहुंचना होगा, और ये वही शख्स है जो सबसे ज्यादा खामोश रहा है, जो सब कुछ जानता है मगर जाहिर नहीं होने देना चाहता। बाबा करीम ने हवेली के दरवाजे की तरफ देखा, जैसे कुछ सोच रहे। कातिल ने हमें अपने करीब ही रखा हुआ है, मगर हम इसे पहचान नहीं पा रहे। तभी एक पुरानी घड़ी की आवाज गूंजी, जो शायद कई सालों से खराब पड़ी थी, मगर आज वो अचानक चलने लगी। ये आवाज सुनते ही वो सब चौंक गए। बाबा करीम की आंखों में एक चमक आई। ये निशानी है कि हम सही रास्ते पर हैं। हमाद ने फौरन हवेली के तहखाने की तरफ बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि कुछ दिन पहले वहां से अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कुछ अरसे से कोई लाश वहां छपी हो। जैसे ही वो सब नीचे पहुंचे, वहां एक पुराना संदूक नजर आया जो आधा जमीन में धंस चुका था। बाबा करीम ने धीरे से संदूक खोला। अंदर एक खून से भरी हुई चादर थी और उसके नीचे एक खत पड़ा था। हमाद ने वो खत उठाया और पढ़ना शुरू किया। अगर ये खत तुम्हारे हाथ में है तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैंने रहीम को नहीं मारा, मगर मैं जानता हूं कि असल कातिल कौन है। वो हमेशा सबकी नजरों से बचा रहा, मगर उसकी हकीकत जल्द सबके सामने आ जाएगी।
वो स्कूल का गार्ड नहीं था, वो कोई और था जो हमारे दरमियान ही मौजूद था। हमाद ने खत पढ़कर बाबा करीम की तरफ देखा। ये सब कुछ हमें किसी की तरफ इशारा कर रहा है, मगर कौन? अचानक तहखाने के दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। सब ने मुड़कर देखा तो एक साया खड़ा था। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर आया और जैसे ही रोशनी में आया सबके चेहरे हैरत से सफेद पड़ गए। ये प्रिंसिपल थी। हमाद ने बेयकीनी से कहा, ये कैसे मुमकिन है? अब तो सबके सामने एक नेक इंसान की तरह रहती थी। प्रिंसिपल ने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर वो मुस्कुराहट जहरीली थी। हाँ, मैं ही हूं। मगर तुम ये क्यों सोचते हो कि कातिल हमेशा वो होता है जो सबसे ज्यादा मशकूक हो? सच तो यह है कि मैंने रहीम को नहीं मारा, मगर मैंने कातिल को छुपाया था, क्योंकि वो मेरा बहुत करीबी था। बाबा करीम ने गुस्से से कहा, तुमने एक कातिल की हिफाजत क्यों की? प्रिंसिपल की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो दिखावे के नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो मेरा बेटा था। ये सुनते ही सब पर सकता तारी हो गया। हमाद ने हैरत से पूछा, तुम्हारा बेटा? मगर वो कौन था? प्रिंसिपल ने लंबी सांस ली। बाबा करीम ने गुस्से से कहा, तुमने एक कातिल की हिफाजत क्यों की? प्रिंसिपल की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो दिखावे के नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो मेरा बेटा था। ये सुनते ही सब पर सकता तारी हो गया। हमाद ने हैरत से पूछा, तुम्हारा बेटा? मगर वो कौन था? प्रिंसिपल ने लंबी सांस ली। रहीम एक दिन स्कूल में देर तक रुका था। इसने मेरे बेटे को किसी ऐसी चीज के साथ देख लिया था जो इसे नहीं देखनी चाहिए थी। वो मेरे बेटे की कमजोरी जान चुका था, और अगर वो किसी को बता देता तो मेरा बेटा हमेशा के लिए तबाह हो जाता। मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए रहीम को खामोश करवाने का फैसला किया। मैंने खुद इसका कत्ल नहीं किया, मगर मैंने वो रास्ता दिखाया जिससे ये सब कुछ मुमकिन हुआ। बाबा करीम ने सख्त लहजे में कहा, तुमने एक मासूम की जान ले ली सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए। प्रिंसिपल की आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी। मां हमेशा अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, मगर मैं जानती हूं कि मैं गलत थी। मैं जानती हूं कि जो मैंने किया वो नाकाबिल मुआफी है। हमाद ने गुस्से से पुलिस को कॉल की। ये फैसला तुम्हें खुद नहीं करना चाहिए था। अब कानून फैसला करेगा कि तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद पुलिस आई और प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। जाते हुए इसने आखिरी बार हमाद की तरफ देखा और कहा, तुमने सच तलाश कर लिया, मगर क्या सच हमेशा सुकून देता है? ये कहकर वो पुलिस के साथ चली गई। बाबा करीम ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, सच हमेशा तल्ख होता है, मगर इसे सामने आना ही होता है। ये कहकर वो सब हवेली से बाहर निकले, जहां रोशनी हो चुकी थी, जैसे अंधेरे का सफर खत्म हो गया हो और एक नया सूरज तुलू हो रहा हो। रात का सन्नाटा हर तरफ फैल चुका था, मगर स्कूल के अंदर बेचैनी अब भी बाकी थी। प्रिंसिपल की गिरफ्तारी के बाद सबको लगा कि कहानी खत्म हो चुकी है, मगर हकीकत में ये सिर्फ शुरुआत थी। हमाद, बाबा करीम और बाकी सब लोग अब भी इसी सवाल में उलझे हुए थे कि क्या वाकई प्रिंसिपल ही मरकजी मुजरिम थी या कोई और उस कहानी के पीछे छुपा हुआ था। हमाद ने सोचते हुए कहा, प्रिंसिपल ने कहा कि इसने खुद कत्ल नहीं किया, बल्कि किसी और के लिए रास्ता हमवार किया। मगर वो कातिल कौन था? बाबा करीम ने गहरी सांस ली। अगर प्रिंसिपल का बेटा असल कातिल था तो हमें इसके बारे में जानना होगा। मगर अजीब बात यह है कि हमने कभी स्कूल में या उसके आसपास इसके बेटे को देखा ही नहीं। हमाद ने प्रिंसिपल के दफ्तर में पड़ी फाइलें खोलना शुरू की, शायद कोई सुराग मिल जाए। आखिरकार एक पुरानी फाइल में इसे एक तस्वीर मिली। ये तस्वीर प्रिंसिपल के बेटे की थी, मगर जैसे ही हमाद ने गौर से देखी, इसके चेहरे पर खौफ छा गया। ये कैसे मुमकिन है? हमाद के हाथ कांपने लगे। बाबा करीम ने तस्वीर की तरफ देखा और उनके चेहरे का रंग भी उड़ गया। ये तो स्कूल का नया चौकीदार है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। जिस शख्स को वो एक आम चौकीदार समझ रहे थे, वो दरहकीकत प्रिंसिपल का बेटा था, जो सबकी आंखों के सामने था, मगर किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। हमाद फौरन स्कूल के बाहर दौड़ कर गया, मगर वहां चौकीदार कहीं नजर नहीं आया। वो जा चुका था। ये शख्स हमारी आंखों के सामने से निकल गया और हमने महसूस भी नहीं किया। हमाद ने गुस्से से मुट्ठी भी नुची।
तभी बाबा करीम ने एक और खौफनाक हकीकत की तरफ इशारा किया। अगर वो फरार हो चुका है तो इसका मतलब है कि वो मजीद किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। हमें इसे जल्दी पकड़ना होगा। हमाद ने पुलिस को कॉल करके सारी मालूमात दें और प्रिंसिपल के बेटे की शनाख्त जाहिर कर दी। अब पुलिस हर जगह इसकी तलाश में थी, मगर वो शख्स ऐसे गायब हो चुका था जैसे कभी मौजूद ही ना हो। चंद दिनों के बाद एक और धमाका खेज इंकिशाफ हुआ। एक और स्कूल में एक बच्ची गायब हो चुकी थी और स्कूल के स्टाफ ने बताया कि चंद दिन पहले वहां एक नया चौकीदार भर्ती हुआ था जो बिल्कुल खामोश रहता था और किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। ये वही है, हमाद ने बेयकीनी से कहा। वो अपना नाम और शनाख्त बदल कर किसी और स्कूल में जा चुका है। अब ये केस एक नए मरहले में दाखिल हो चुका था। कातिल आजाद था और वो कहीं भी हो सकता था। हमाद और बाबा करीम ने फैसला किया कि वो इस बार कातिल को खुद ढूंढेंगे और कानून के हवाले करेंगे ताकि कोई और फातिमा जैसी मासूम बच्ची इसकी दरिंदगी का शिकार ना हो। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई थी, ये तो बस शुरुआत थी। कई दिन गुजर चुके थे मगर कातिल का कोई सुराग नहीं मिला था। पुलिस अपनी तलाश में मसरूफ थी, मगर हमाद और बाबा करीम जानते थे कि अगर वो हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे तो शायद कभी इंसाफ ना हो सके। फातिमा अब भी अस्पताल में थी, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही थी। हमाद और बाबा करीम ने फैसला किया कि वो खुद कातिल को तलाश करेंगे। वो दोनों प्रिंसिपल के घर पहुंचे, शायद वहां से कोई ऐसा सबूत मिल जाए जो कातिल की मौजूदा जगह का पता दे सके। घर पर ताला लगा हुआ था, मगर बाबा करीम ने दरवाजे के नीचे से एक पुराना खत बाहर निकाला। वो खत किसी के नाम पर नहीं था, मगर इसमें कुछ अल्फाज वाजे थे। यहां अब और नहीं रुक सकता। मैंने वही किया जो जरूरी था। तुम जानती हो कि मैं कहां जा रहा हूं। वहां कोई मुझे पहचान नहीं सकेगा। जल्द मिलेंगे। यह खत प्रिंसिपल के बेटे ने लिखा था, मगर सवाल यह था कि वो कहां गया था। हमाद ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर अचानक इसके दिमाग में झमिक्का हुआ। अगर वो छुपना चाहता था तो वो ऐसे स्कूल में गया होगा जहां इसे कोई ना पहचान सके। बाबा करीम ने चौंक कर कहा, मतलब किसी दूर दराज इलाके में। हमाद ने सर हिलाया। अब फिर वो किसी ऐसे शहर गया होगा जहां कोई इसे जानता ना हो। अब सवाल यह था कि वो कहां होगा। तभी बाबा करीम को कुछ याद आया। पिछले महीने एक अखबार में आया था कि एक गांव में एक नया स्कूल खुला है और वहां एक चौकीदार भी रखा गया है जो बाहर से आया है। शायद। हमाद ने फौरन मोबाइल निकाल कर वो खबर तलाश की और जैसे ही इसे स्कूल का पता चला वो फौरन वहां जाने के लिए तैयार हो गया। रात का वक्त था और वो स्कूल एक सुनसान इलाके में था। हमाद और बाबा करीम ने खामोशी से स्कूल के गिर्द चक्कर लगाया और जैसे ही वो चौकीदार के कमरे के करीब पहुंचे, अंदर से सरगोशियों की आवाजें आने लगे। मुझे यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। हमाद ने इशारा किया और बाबा करीम ने दरवाजे पर जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही एक शख्स खौफजदा नजरों से उनकी तरफ देखने लगा। वही था प्रिंसिपल का बेटा। वो फौरन भागने लगा, मगर हमाद ने छलांग लगाकर इसे जमीन पर गिरा दिया। बाबा करीम ने इसके हाथ पकड़ लिए और इतने में पुलिस भी वहां पहुंच गई। अगले दिन यह खबर हर तरफ फैल चुकी थी कि फातिमा को इंसाफ मिल गया। कातिल को पकड़ लिया गया था और अब वो हमेशा के लिए सलाखों के पीछे रहने वाला था। हमाद अस्पताल गया जहां फातिमा की मां इसका शुक्रिया अदा कर रही थी। अगर अपना होते तो शायद हम कभी इंसाफ ना हासिल कर पाते। बाबा करीम ने मुस्कुरा कर कहा, यह हमारी जिम्मेदारी थी और सबसे बड़ी बात यह है कि फातिमा अब महफूज है। फातिमा की आंखों में उम्मीद की रोशनी नजर आ रही थी। वो जानती थी कि दुनिया में बुरे लोग मौजूद हैं, मगर अच्छे लोग भी होते हैं जो हर हाल में सच का साथ देते हैं। कहानी खत्म हो चुकी थी, मगर एक सबक सबको दे गई। जुल्म को छुपाने से जालिम मजबूत होता है, मगर अगर सच के लिए खड़े हो जाओ तो इंसाफ जरूर मिलेगा। हमाद और बाबा करीम के हाथ एक ऐसा सुराग लग चुका था जो